Hello everyone, welcome back to my channel. I am back with another interesting home tour, and if you love DIYs then you are going to love this home. So let's begin. This gorgeous home belongs to Shaoni, who shifted to this government bungalow right after her marriage with her husband. Like most of the government bungalows, ये बंगलो भी बहुत पुराने स्टाइल का था। फ्लोर वगैरह भी ज़्यादा अच्छी हालत में नहीं थे और तब शाओनी ने डिसाइड किया कि वो इस घर को एक नया लुक देंगी। शुरुआत करी उन्होंने अपनी इस बालकनी के साथ। इनकी इस छोटी सी बालकनी का फ्लोर बिल्कुल प्लेन था और शाओनी ने डिसाइड किया कि वो इस पे स्टेंसिल करके इसको एक नया लुक देंगी। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इस फ्लोर की वजह से इस पूरी बालकनी का लुक ही चेंज हो गया है। इसको एक विंटेज फील मिला है और ये बहुत ही क्लासी लग रहा है अब। Shawnee loves traveling and she keeps collecting small knick-knack decor items like this quirky little plaque which says a witch lives here. She got this from New Zealand and it looks really interesting. She is an editor by profession, but at her heart, home decor is her true love. She loves spending her free time doing these DIYs from wall art to her floor to her bathroom ceiling. Everything has got touch of her art. This balcony floor was her first DIY and her favorite too. She completed this whole makeover within rupees 1500, which is commendable. Now let us have a look inside her beautiful living room. Her living room entrance has got these beautiful wall hangings from various parts of our country. She has smartly used some artificial plants in order to add some greenery in her living room because her living room does not get good amount of sunlight, so she has used these artificial plants here and there. This is a pretty old style bungalow, so she has used artificial vines to cover electric wirings. She has made some curtains from her old saris, from her dupattas to give an interesting look to this bungalow. A corner of our living room has this day bed which is often used during big gatherings, and you can see some of our personal pictures. Some pendant lights are hung in the corner in order to bring some more comfy vibes in this room. Shawnee wanted to maintain the old world charm of this bungalow, so she has used pretty interesting things all around her home. Like if you look at this coffee table closely, she has used some seed pods as center table decor, which is really interesting. And then you can see some fresh flowers from her garden, and on the one corner there are some classic books, and on the other corner we have some DIY coffee table decor from Shawnee. This is the TV corner of the house, and you will notice some more artificial vines used to hide the ugly wire, which is really smart thing to do if you are living in a old style house or bungalow. You can easily add the color pop and hide the wire as well. TV console has also got items from her garden, some from her New Zealand and Australia trip. The stones you see, the pebbles, are from her New Zealand trip. So she has used a lot of elements from the nature to decorate her home. She says you just need a little bit patience and some imagination and you can convert any house into your dream home. So true. जब मैंने शाओनी से पूछा कि क्या वो मेरे सब्सक्राइबर्स को कोई स्टाइलिंग टिप देना चाहेंगी,
तो उन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप दी, और वो ये है कि आप अपने घर के किसी भी कॉर्नर को डेकोरेट करते वक्त जल्दी में ना पड़िए। आप टाइम लीजिए, टाइम इन्वेस्ट करिए और प्रॉपर्ली सोचिए कि आप कौन सी चीज़ को कहाँ रखना चाहते हैं, किस तरह का लुक क्रिएट करना चाहते हैं अपने घर के किसी भी कोने के लिए। अपने घर को डेकोरेट करने के लिए हमें हज़ारों रुपए खर्च करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी सी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन के थ्रू हम अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से सजा सकते हैं, बहुत ही सिंपल चीज़ों के साथ, और ये घर उसी का एग्जाम्पल है। अब हम आ गए हैं शाओनी के बेडरूम में, जहाँ पे आपको उनका डीआईवाई किया हुआ ये साइड टेबल दिखाई देगा, जहाँ पे उन्होंने पेंट किया था अपने एक ओल्ड ट्रंक को, और उसका स्टैंड उन्होंने एक लोकल मार्केट से ही बनवाया है। बहुत ही स्मार्ट तरीका है कॉस्ट इफेक्टिव वे में एक स्टोरेज वाली साइड टेबल बनाने का। इसके ऊपर वो कुछ बेसिक सी चीज़ें रखती हैं, जैसे कि जो बुक वो पढ़ रही हैं, एक फ्रेम रखती हैं, और उन्होंने यूज़ किया है दिवाली में मिला हुआ एक गिफ्ट बॉक्स, जिसको वो स्टोरेज के लिए यूज़ करती हैं। शाओनी अपने बेड को स्टाइल करने के लिए कई बार पुराने दुपट्टों और साड़ियों को भी यूज़ करती हैं, जिससे कि उनके बेड को एक कलर पॉप मिलता है। उन्हें सॉलिड बेड शीट्स यूज़ करना पसंद है, जिससे कि एक अच्छा सा कलर कंट्रास्ट क्रिएट होता है। और अब चलते हैं इस रूम के सबसे खूबसूरत डीआईवाई की ओर, और जो है उनके बेड के पीछे बना हुआ ये आर्ट। शाओनी अपने बेड एरिया में एक ब्यूटीफुल सा हेडबोर्ड लुक क्रिएट करना चाहती थी, और फ़िलहाल यहाँ पे वॉलपेपर या कुछ और चीज़ें लगाना पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो ये लुक क्रिएट करेंगी स्टेंसिल का यूज़ करके। बहुत ही स्मार्ट तरीका था। उन्होंने इस वॉल पे 2 कलर्स यूज़ किए हैं, जिसके थ्रू ये लुक क्रिएट हुआ है, और उन्होंने बॉर्डर्स भी क्रिएट किए हैं। इस बंगलो के फ्लोर्स काफ़ी ख़राब हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा रग्स और चटाई का यूज़ करती हैं, जिससे कि जो फ्लोर हैं वो भी कवर रहते हैं और रूम में एक कोज़ी वाइब भी क्रिएट होती है। ये हैंगिंग लैम्प्स उन्होंने वॉल हुक की मदद से लटका रखे हैं, और ये लैम्प्स उनकी रूम की खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ाते हैं। मुझे ये जो उनका डीआईवाई हेडबोर्ड है ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, और इंस्टाग्राम पे भी बहुत लोगों ने इसको पसंद किया है, बहुत लोग इसको रिक्रिएट करने की कोशिश भी करते हैं। So now you can see little imagination and little hard work has completely transformed the look of this bedroom in a very small budget. Now we are going to talk about Shaoni's किचन, जिसको उन्होंने कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। एक बहुत ही बेकार पुराने स्टाइल की किचन से अब उन्होंने उसको बिल्कुल मॉडर्न लुक दे दिया है, और सब कुछ उन्होंने हाथ से किया है, जो बहुत बड़ी बात है। शाओनी ने इस किचन को एक वाइब्रेंट और कलरफुल लुक देने के लिए फेक स्टोन्स बनाए इस किचन के फ्लोर पर। उन्होंने ये सब कुछ हाथ से पेंट किया। उनको करीब करीब 3 से 4 दिन लगे ये पूरा फ्लोर फिनिश करने में। उसके अलावा उन्होंने ये क्वाकी सा मैसेज लिखा, जहाँ पे लिखा हुआ है एलेक्सा डू द डिशेस। आई विश एलेक्सा हमारी डिशेस कर रही होती, स्पेशली इस टाइम पर। और उसके अलावा उन्होंने किचन से रिलेटेड कुछ वॉल डेकोर भी ऐड किया अपने किचन में। आप देख सकते हैं कि फ्लोर पे उनको बहुत काम करना पड़ा होगा, बहुत मेहनत लगी होगी, क्योंकि इतनी देर झुककर पेंट करना बहुत ही मुश्किल है। ये उन्होंने कैसे पेंट किया और कौन कौन सा कलर यूज़ किया, ये सब आप उनके इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर सकते हैं। मैं उनका इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाके उनको फॉलो कर सकते हैं। उन्होंने डिटेल में अपने सारे मेकओवर्स के बारे में बताया हुआ है।
So you can see here how little creativity has completely transformed this dull, boring kitchen into this vibrant kitchen. And of course, it took a lot of hard work, but कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है ना? The floors of this bungalow are really old, इसलिए शाओनी को इसकी मेंटेनेंस में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कई बार ये जगह जगह से उखड़ जाता है, तो उन्होंने दोबारा भी पेंट किया हुआ है कुछ सेक्शंस को, बट ऑब्वियसली पुराना होने की वजह से ज़्यादा मेहनत लगती है। नॉर्मल घरों में इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। Now we have reached to the last section of this video, जहाँ पे हम देखेंगे शाओनी का बाथरूम, जिसको उन्होंने रिसेंटली एक ट्रॉपिकल मेकओवर दिया था। शाओनी का बाथरूम काफ़ी छोटा था, जो अक्सर गीला हो जाता था, इसीलिए उन्होंने इसमें शावर कर्टन इंस्टॉल किया, जिससे कि नहाते वक्त पूरा वॉशरूम गीला ना हो। सिंक के नीचे एक अगली पाइप दिखती थी, जिसको हाइड करने के लिए उन्होंने ये सिंक स्कर्ट बनाया अपने हाथों से। और जो कमोड के ऊपर आप DIY शेल्फ देख रहे हैं, वो ऑब्वियसली उन्होंने खुद बनाया, जिस पे उन्होंने कुछ छोटी मोटी चीज़ें रखी हुई हैं। और ऑब्वियसली इस मेकओवर का स्टार है ये सीलिंग, जिस पे उन्होंने खुद अपने हाथों से पेंट किया है और उसको एक ट्रॉपिकल लुक दिया है। आप देखकर रियलाइज़ कर पा रहे होंगे कि ये सब बनाने में उन्होंने कितनी मेहनत करी होगी, काफ़ी हार्ड वर्क लगा होगा। बट लुक एट द फाइनल रिजल्ट्स। ये किसी भी एंगल से किसी बोरिंग गवर्नमेंट बंगलो का वॉशरूम तो नहीं लग रहा है, ये बिल्कुल किसी पिंटरेस्ट के बाथरूम जैसा लग रहा है। एंड आई एम सिंपली लविंग द फाइनल लुक। शाओनी ने जो ये डिज़ाइंस बनाई हैं इस सीलिंग पे, वो बिल्कुल किसी वॉलपेपर के जैसे लग रही हैं, और कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ये किसी ने खुद से बनाया है। और अगर आप भी ऐसे डिज़ाइंस को अपने घर में बनाना चाहते हैं, चाहे वो आपका लिविंग रूम हो, वॉशरूम हो, या कोई भी एरिया हो, तो शाओनी का रिकमेंडेशन ये है कि पहले आप पेपर पे प्रैक्टिस करिए। जब आप पेपर पे बनाते हैं तो आपको अंदाज़ा लगता है कि ये डिज़ाइन कैसी लगेगी, क्या आप सच में उसको उतार पाएंगे, तो आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा लग जाएगा पेपर पे बना के। शाओनी अक्सर ऐसे यूनिक और बजट फ्रेंडली मेकओवर्स करती रहती हैं, और इसके अलावा भी वो बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें पोस्ट करती हैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि ये वीडियो ख़त्म होते ही तुरंत आप उनके इंस्टाग्राम हैंडल को चेक करिए। उनके इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, ज़रूर चेक करिए, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है। और मैं उम्मीद करती हूँ आपने आज का होम टूर इन्जॉय किया होगा, और अगर इन्जॉय किया है तो लाइक, कॉमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।